જાય ને એને હોસ્પિટલની જરૂર પડે, આપણા પાસે એટલા બેડ નથી. તો સરકાર વોઝ વેરી ક્લિયર કે તમે ઘેર મરો કે તમને થાય જ નહીં. તમે બહાર નીકળશો ઇન્ફેક્શન થશે અને ઇન્ફેક્શન એટલું ખરાબ થઈ જશે કદાચ તમને દાખલ થવાની જરૂર પડશે. પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ એ છે કે જ્યારે સરકારે લોકડાઉન જાહેર કર્યું ત્યારે કોવિડ આપણા ઇન્ડિયા માટેની એકદમ નવું હતું. અમને એનું ટ્રીટમેન્ટનો ખ્યાલ નહોતો, કઈ રીતે બિહેવ કરશે એનું ખ્યાલ નહોતું. ખાલી ચાઇના પાસે 80-85,000 જે પેશન્ટ હતા એ જ. બાકી આખી દુનિયાના જે કોવિડનું ટ્રીટમેન્ટનો ખ્યાલ હોય તો અમેરિકા, સ્પેન, ફ્રાન્સ, ઇટલી બધા કેમ મેનેજ કરવામાં એટલા ડિફિકલ્ટી થઈ રહી હોય વેક્સિન. તો એ ટ્રીટમેન્ટનું જ્યારે ખ્યાલ ના હોય તો આપણું પહેલું સ્ટેપ કે શું લઈએ? કોઈ તમને લાફો મારે તો તમે શું કરો? ફટ કરીને ગાળ હટાવી. ખ્યાલ છે કે લાફો પડશે. એ ની જર્ક રિએક્શન. આ ની જર્ક રિએક્શનના અંદર શું કર્યું ગવર્મેન્ટે? એ પહેલું લોકડાઉન કર્યું. એમાં કંઈ ખોટું નથી, બહુ સારો સ્ટેપ કહેવાય કે ચલો બીજું કંઈ નહીં તો એકવાર ઘેરમાં તરો પછી જોઈશું. અને ઇન્ડિયા જેવો દેશ જેની સંપન્નતા કદાચ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ કે અમેરિકન કન્ટ્રીઝ જેવી નથી, જે 40-50-51મો દિવસ છે લોકડાઉન, તમારા બધા નોલેજ માટે. તો એ લોકડાઉન 50 દિવસ અમે બધા રોટલી ખાઈ શકીએ, અમારા બધાના ઘરમાં અનાજ છે, અમારા ઘરના પ્રોબ્લેમ્સ નથી, તો ઇઝ ઇટ જસ્ટિફાઈડ? અને એ લોકો માટે જે આપના જેવા સરસ લોકો ઉપર આશ્રિત હતા, જે ખરેખર આપની તરફ જોઈને કામ ચલાવી રહ્યા હતા, એ લોકોની હાલત શું થઈ રહી છે? એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે જેને વિચાર કરવાનો છે, જેને વિચારીને સરકાર લોકડાઉન ખોલવાની વાત કરી રહી છે. તો ઘણા બધા સબ્જેક્ટ મારા મગજમાં છે, કદાચ વેબિનાર બહુ જ નાનો પડશે એના માટે, છતાં પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અમુક વસ્તુ છે જે મારા તરફથી મારા મગજમાં પ્રશ્નો ફરી રહ્યું છે અને આન્સર્સ છે. તો એ બધી વસ્તુઓ ખાસ કરીને મારે ડોક્ટર તારકને પૂછવું છે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું મારા પહેલું પ્રશ્ન ડોક્ટર તારકને પૂછવા કે ડોક્ટર તારક, મારો પહેલો પ્રશ્ન તમારા જોડે ડોક્ટર તારક, યુ આર લિસનિંગ મી? તો મારો પહેલો પ્રશ્ન છે કે જ્યારે કોરોના નવું આવ્યો તો મને બી બહુ ખ્યાલ નહોતો, તમને બી બહુ ખ્યાલ નહોતો, અને કદાચ કોઈ ફિઝિશિયનના કોઈ ઇન્ટેન્સિવિસ્ટને બી બહુ ખ્યાલ નહોતું. જેટલું ટીવી પર ન્યૂઝમાં, અને અમે મેડિકલ પર્સનલ છે તો અમે મેડિકલ લિટરેચરમાં થોડું વાંચીને વધારે જાણી શકીએ, પણ જનરલ પબ્લિકમાં એક ફિયર બેસી ગયું કે કોરોના થયો અને તાત્કાલિક ફિયર નહીં બેઠો. એ ફિયર આવવાના ઘણા કારણ છે, એ પણ ડિસ્કસ કરશું. મતલબ કોરોના થઈ જશે તો આપણે મરી જ જઈશું, અથવા કોરોનાથી બચો, કેમ કે કોરોનાથી જે કોરોના તમને થઈ ગયો તો ખબર નહીં શું થશે, બીકોઝ ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ નથી, વેક્સિન અવેલેબલ નથી, દવાઓ અવેલેબલ નથી. તો એક માઇન્ડસેટની વાત કરું છું કે જ્યારે કોઈ પણ માણસ એવી રીતે ગભરાય છે કોઈ વસ્તુથી જેના આપણે જોઈ ના હોય, જેના માટે આપણે જાણતા ના હોય, તો એના માટે આપનો વિચાર શું હોવો જોઈએ? વોટ શુડ બી અવર થોટ પ્રોસેસ? ઘણા બધા હિન્દી દર્शकों હશે तो હું થોડું હિન્દીમાં પણ બોલીશ कि उसके लिए हमको ऐसे अपने विचारों में क्या चेंज लाना चाहिए? हमें भी पता है कि बहुत नई चीज है, किसी को पता नहीं है. तो क्या हम थोड़े वक्त रहे या आप घर में बैठे रहें या अपने मतलब परेशानियों से घिरे रहें, बहुत बहुत ज्यादा चिंता होती रहे, लगे कि घर के आगे से कोई इंसान निकल गया तो हमको कोरोना ना हो जाए. मैंने देखा है सोसाइटी में लोग एक दूसरे की तरफ देखते ठीक, जो आप कह रहे हैं कि कोरोना ये जो बीमारी है, ये बीमारी पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं है। ये बीमारी जब आई तब किसी व्यक्ति को नहीं पता था ये बीमारी कैसे बिहेव करेगी, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका फैलाव कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसके साथ वो फैलाव होता है तो कितने दिन में वो व्यक्ति को कोई सिम्टम्स आते हैं या सिम्टम्स आते हैं कि नहीं आते हैं। उसके साथ ये भी पता नहीं था कि उसकी क्या ट्रीटमेंट है भी तो उससे व्यक्ति को अच्छा हो जाता है, अच्छा होता है तो फिर से ये बीमारी हो सकती है कि नहीं,
कितने समय तक जिस व्यक्ति को वो कोरोना का चेप लगा हुआ है, वो कितने समय तक दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है, या कितने वक्त तक उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चेप लग सकता है। उसके अलावा ये सब कुछ जो होगा, तो मेरे फैमिली का क्या होगा, ये सब चीजें सबके दिमाग में डर बैठा हुआ है। वो सब चीजों को निकालने के लिए गवर्नमेंट हेल्प कर ही रही है। गवर्नमेंट के हेल्थ केयर नंबर है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट की मोबाइल एप्लीकेशन है। उन सब चीजों से हम ज्ञान ले सकते हैं। दूसरा मैं अहम चीज ये कहूंगा कि अगर उनसे आपको नहीं पता चलता है, तो आपके अपने डॉक्टर जो है उनसे आप उनके सानुकूल समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि ये कोरोना क्या है, किस प्रकार से फैलता है, आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं। अगर मुझे किसी को बताना है कि कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो फैलना होता है, तो वो हमारे जो ड्रॉपलेट्स है उस चीज से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। वो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन जो है वो हम एक दूसरे व्यक्ति के सामने आए जब बोलना शुरू करते हैं, तब हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। जब छींक आती है, जब कफिंग होता है, तब ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जब एक दूसरे के सामने आए तब हमने मास्क पहना होना चाहिए। हमारा मास्क भी इतना इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सामने वाले का मास्क है, क्योंकि अगर सामने वाले ने मास्क नहीं पहना है, उनको इन्फेक्शन है, तो आपको इन्फेक्शन लगने की संभावना है। हमारा मास्क ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हमें इन्फेक्शन है तो दूसरों को न लगे। और उसके साथ साथ अगर किसी से हम बात करते हैं, नियत प्रकार की दूरी बनाए रखे। जैसे हिंदुस्तान में प्रचलित है कि 2 गज की दूरी या 6 फीट डिस्टेंस हमें अगर हो सके चाहिए। बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। अगर कहीं पे भी छूते हैं तो वो हाथ हमारा फिर से हमारे चेहरे पे, आंखों पे या नाक पे कहीं पे लगना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर हम बाहर से घर जाते हैं तो सबसे पहली चीज के जूते बाहर निकलने चाहिए। घर में जाने के बाद सीधा आप टॉयलेट में जाइए, आपके हाथ धोइए, आपके कपड़े चेंज कीजिए और फिर ही घर के किसी व्यक्ति को मिलिए, उनसे बात कीजिए। और सबसे अहम चीज कि अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हुए हैं कि जिसको ऐसा कुछ हुआ है, तो आप घर जाने से पहले घर में आप फोन करके बता दीजिए कि मैं आ रहा हूँ। घर का दरवाजा खुला रखे, आप घर पे जाके पहले स्नान कीजिए और फिर घर के लोगों से मिलिए। हाँ डॉक्टर तारक, तो मतलब कहने का मतलब है कि सावधानी बरतें, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल। मुझे ये बात उन दिनों की याद दिलाता है जब शायद आप लोग, बहुत लोगों ने ये दिन देखा होगा जब HIV का जमाना था, आज से 25 साल पहले, और मैं अपनी सर्जरी की पढ़ाई कर रहा था। तो जब मैं सर्जरी की पढ़ाई करता था तो हमें बड़ा डर था, क्योंकि उस वक्त ना दवा थी और दुआ भी काम नहीं करती थी। और एक सर्जन को तो किसी के खून से अगर निडल लग गया या सर्जरी करते हुए कुछ लग गया और उसका खून आपके खून के साथ टच हो गया तो HIV होना निश्चित है। और HIV अगर हो जाएगा तो मृत्यु होनी निश्चित है। तो एक बहुत भय था सर्जन की तरह। तो हमने जब ये बात की आपस में सबसे, जब सरकार से बात की, तो सरकार ने बड़ा क्लियर इंडिकेशन दिया हमें कि इतनी इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है, इतनी इतनी चीजों का आपको प्रोटेक्शन रखना है और आपको इसी तरह से ट्रीट करना है। और आप लोगों को भी समझाया कि किस किस तरीके से HIV फैलता है और कितने प्रिकॉशन रखते हैं। और हम 25 साल में जीना सीख रहे उसके साथ। अगर आप सच में सोचिएगा तो HIV का भी कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन हम सच में अब जीना सीख गए। और मैं आपकी और अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर उस इंसान की बात कर रहा हूं जो इस तरह से रोग से संक्रमित हो सकता है। तो कोरोना अब अपने जिंदगी का एक हिस्सा है। आप अगर ये सोचते हैं कल उठ के कोरोना का एक भी केस नहीं रहेगा तो भूल जाइए। अगर एक भी केस नहीं है तो वो इसीलिए नहीं रहेगा कि सरकार टेस्टिंग बंद कर देगी शायद आने वाले 6-8 महीनों में, जब उनको लगेगा कि अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, मास में फैल चुका है और सबके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो तारक साहब ने बोली, जो मुझे भी समझ में हमेशा से आती है
कि सावधानी बरतें, डरे नहीं। डर और सावधानी में फर्क समझिए। डर एक ऐसी चीज है जो आपको अपनों से दूर करेगी, सावधानी एक ऐसी चीज है जो आपको और आपके अपनों को दोनों को सेफ रखेगी। तो हम डरे नहीं, हम सावधानी बरतें, ये बहुत जरूरी है। तारक भाई, अभी मैंने ऐसा भी एक सिचुएशन ऐसा हो गया है कि बहुत सारे दर्शक मित्रों ने, इंक्लूडिंग बहुत सारे डॉक्टर्स ने, आज मेरे किसी डॉक्टर के साथ भी बात हो रही थी और ये वक्तव्य मैं जरूर सुनाना चाहूंगा अपने दर्शक मित्रों को। ये बात हो रही थी कि किसी एक डॉक्टर को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको क्वारंटाइन कर। आपको सबको पता होगा, पेपर में पढ़ा है आपने कि कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर 82 डॉक्टर को क्वारंटाइन कर दिया। अरे हम तो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, अगर हम लोगों को ट्रीट करेंगे तो हमें कोरोना का इन्फेक्शन होना ही होना है, आज नहीं तो कल। अगर हम सबको क्वारंटाइन कर दोगे, सारे पुलिस वालों को क्वारंटाइन कर दोगे, सारे सैनिटाइजेशन वर्कर को क्वारंटाइन कर दोगे, कल उठ के ट्रीटमेंट आगे करेगा कौन? तो ये बहुत जरूरी है कि हम सावधानी बरतें और पेशेंट को भी हम बोले सावधानी बरतने के लिए। समाज में एक व्यापक भय है और इस भय के अंदर मैंने एक चीज देखी है तारक भाई, कि अगर अब तो बहुत नॉलेज आ चुकी है, 50 दिन हो गए, गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया है कि भाई अगर आपको सिम्टम नहीं है तो एडमिट होने की भी जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट का भी एक पैटर्न पता चल गया है, काफी सारे कोरोना के मरीज ठीक होके घर जा रहे हैं, काफी लोगों को कोरोना के बारे में। पर अभी मैंने बहुत जगह देखा है कि अगर किसी को कोरोना हो गया, मान लीजिए फ्लैट सिस्टम में आप रहते हैं, तो एक तरीके से उसको आप आउटकास्ट कर देते हैं, आप बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं देते, आप बिल्कुल, मतलब एक ऐसा भय का माहौल बन चुका है हर जगह। और उस भय के माहौल में लोगों ने क्या किया है कि मतलब कहते हैं ना कि एक सरकार के अंदर दूसरी सरकार बना दी। सरकार तो अपने नियम कायदे बना रही है, पर सोसाइटी ने भी अपने ऐसे नियम कायदे बना दिए जिसको मैं कहता हूँ ड्रैकोनियन। मतलब वो किसी के ऊपर हावी होकर किसी को इतना ज्यादा परेशान कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए एक घर में 90 साल की महिला हो और 95 साल के बुजुर्ग हो, आज उनके घर में ना कोई सर्वेंट आ सकता है, ना कोई खाना पकाने वाला आ सकता है, ना कोई आजू बाजू पड़ोसी वाला मदद कर रहा है। अब 60 दिन हो गए ना, पहले की बात नहीं करता था, पहले की बात एकदम वाजिबी है कि जब हमें पता नहीं था तो हम समझ सकते हैं, पर अब 60 दिन हो गए। तो इस भय के वातावरण से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लोग जो डरे हुए हैं वो इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनका जो नॉलेज है कोरोना के बारे में वो अप टू डेट नहीं है। क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे जो भी देखते हैं कि कोरोना से ये हुआ, अगर कोरोना हो जाएगा तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्वारंटाइन कर देगी, या फिर कोरोना अगर हो गया तो हम अपने ही घर में लॉक हो जाएंगे, हमें कुछ खाना पीना नहीं मिलेगा। तो और कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अचानक से फैल जाएगा। जो ये बीमारी जो जिस प्रकार से फैलती है उस प्रकार से उनको मालूम नहीं है। वो अगर नॉलेज लोगों को दी जाए तो इसमें काफी सारा सुधार हो सकता है। क्योंकि जो नॉलेज लोगों को नहीं है उसी की वजह से लोग फियर में रह रहे हैं, उसी की वजह से लोग कोई भी स्टेप उठाने से डर रहे हैं, लोग दूसरे लोगों की मदद करने के से डर रहे हैं। और अगर किसी व्यक्ति को सोसाइटी में, फ्लैट में कोरोना हो जाएगा तो पूरा फ्लैट, पूरा सोसाइटी, पूरा बिल्डिंग सील हो जाएगा। ऐसी डर की भावना से ये सब कुछ हो रहा है। तो उसका एक ही इलाज है कि सही से सही माहिती दूसरे लोगों को दी जाए। अगर कोई माहिती, कोई सुझाव हमें व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे मिलता है तो उसका सच्चाई का परीक्षण किए बगैर हम उसको माने नहीं। क्योंकि अभी के समय में जो रूमर्स फैल रहे हैं, सोशल मीडिया से माहिती आ रही है कि ये करने से कोरोना नहीं होता है, या कोरोना इस प्रकार से फैल रहा है, ये करना चाहिए, उस व्यक्ति के जिसको कोरोना हुआ है उससे आप इतने दूर रहिए, उनको लॉकडाउन कर दीजिए। ये सब चीजें जो है वो अगर सही माहिती लोगों को मिलेगी तो ही लोग, उसका डर लोगों के मन में से कम होगा, और वो डर कम होगा तो ही हम एक जिस प्रकार से रहते थे उस प्रकार से हम रह पाएंगे। मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि करेक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है, और वो मिलेगी कहाँ से? प्रश्न ये आता है कि वो मिलेगी कहाँ से? तो कहाँ से मिलेगी? आप टीवी चैनल से लगता है कि आपको करेक्ट नॉलेज मिलेगी, क्या वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं?
नहीं। मजदूर कितने पलायन कर रहे हैं, क्या भीड़ बैठी है, ट्रेन कब चलने वाली है, कहाँ कितने कोरोना हुए, कितने मर गए, कम मरे, ज्यादा मरे, उसके आंकड़ों को हम सही साबित कर रहे हैं, गलत नहीं। हाँ, टीवी से एक बहुत अच्छी चीज हमें मिली, जो गवर्नमेंट ने नॉलेज को फैलाने की कोशिश की, कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, जैसा कि डॉक्टर तारक ने समझाया, हाथ धोना, ये हमें जिंदगी का अंग बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। पर सही जानकारी आज के समय में व्हाट्सएप के और टीवी के बारे में मैं डॉक्टर तारक से बात अभी करूंगा। आज के जमाने में कहाँ से मिली, कौन देगा? ये सारा वेबिनार करने का रीजन ही यही है, जो उन्होंने जानकारी दी और जो सही है वही जानकारी उन्होंने दी। इसके अलावा हर इंसान के पास जनरल फिजिशियन, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, आप और किसी से नहीं तो अपने डॉक्टर से बात करें। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं जिनको कोरोना हो गया है, और जब मैंने उनको बोला कि आप मुझसे बात करें, इससे पहले आप अपने डॉक्टर से बात करें, जब उनके डॉक्टर उनको कुछ सलाह देते हैं तो वो पेशेंट ने मेरे को वो सलाह भेजी जो एकदम सच्ची सलाह होती है। किसी डॉक्टर ने नहीं बोला तुम मर जाओगे, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला बोरिया बिस्तर उठाओ और भागो अस्पताल की तरफ। अब 50 दिन के बाद हमें भी पता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, हर डॉक्टर को पता है, हर जनरल फिजिशियन को पता है। तो मेहरबानी करके बिल्कुल आप अपने डॉक्टर से तो बात कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास पेपर में न्यूज करेक्ट नहीं आ रही है, आपके पास न्यूज में करेक्ट न्यूज नहीं आ रही है, अपने व्हाट्सएप के ऊपर करेक्ट न्यूज नहीं आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। हर इंसान का अपना एक जनरल फिजिशियन तो होता ही है, और अगर जनरल फिजिशियन नहीं है तो आप डॉक्टर्स के वेबसाइट पे जाके अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और उस क्वेश्चन के आंसर मुझे लगता है काफी सारे वेबसाइट अवेलेबल हैं, ट्रैक्टो है, इन सब चीजों पे आपको बहुत आराम से आंसर मिलेगा। आपकी बातों से एक चीज का ख्याल आया मुझे तारक भाई, आज हम घर में फ्री बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लॉकडाउन किया है, दुकानें बंद है, दफ्तर बंद है, हमें कहीं जाना नहीं है। मैं आपकी और हमारी बात नहीं कर रहा, पर जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। हम घर बैठे बैठे करते क्या है, टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं। तो हम टीवी और व्हाट्सएप के जो अधिक यूज हो रहा है और जो उससे हमें भ्रामक जानकारी, खोटू नॉलेज जिन्हें जो मिलती है, अब हम उसको भ्रामक नहीं मानते, हमको तो लगता है वो सही है। आज ही मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे ही टीम में से एक महिला डॉक्टर है हमारी टीम में, उन्होंने बोला कि लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ रहा है, आज आया देखो अभी इसके अंदर लिखा हुआ तारीख, जबकि वो एक भ्रामक न्यूज थी, गलत न्यूज थी, किसी ने गलत फैलाई थी। तो मेरा ये कहना है कि हम कैसे इस चीज को, ये जो एक फोन है तो खोलेंगे ही व्हाट्सएप, घर में बैठे हैं तो टीवी देखेंगे ही, घर में बैठे हैं तो खाना खाएंगे ही। ये संडे भी हम ऐसे ही निकाला करते थे जब लॉकडाउन नहीं था। तो आज के माहौल में इन सब चीजों से दूर रहने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जो नॉलेज आएगी हम और आप मान के चलते हैं कि 90% नॉलेज जो उसमें होती है वो सही नहीं होती है। तो हम इस चीज से कैसे दूर रहें, हम क्या करें कि हम अगर व्हाट्सएप खोलें तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि या तो हम खोलेंगे, और खोलें तो हम भरोसा नहीं करें, अगर हम खोलें कुछ देखें तो उसको कंफर्म करें, क्या करें। तो एज अ साइकियाट्रिस्ट जब आप इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियों से डील करते होंगे, बहुत सारे जिंदगी में पेशेंट देखते होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि ये रस्सी नहीं सांप ही है, रस्सी लटक रही हो पर उसको सांप मान के बैठे हैं और उस डर के मारे बस वहां जा नहीं रहे। तो इस तरह के डर को आप कैसे काबू में करें, इसके बारे में आपकी क्या सलाह? आप बहुत अच्छा सवाल किया, उसके मैं 2 अलग-अलग प्रकार से जवाब दूंगा। पहली चीज कि जो हमें न्यूज चैनल से, अखबार से, सोशल मीडिया से, सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, अलग-अलग सोशल मीडिया से जो खबरें मिलती है, वो खबरें को बिलीव करने से पहले हम उसकी सत्यता की पूर्ति करें। सत्यता की पूर्ति करने के लिए कई सारे वेबसाइट्स हैं, उस पे जाके हम वो कर सकते हैं, और किसी को भी शेयर करने से पहले ये जान ले कि वो सही है, और वो सही है तो ही शेयर करें, अगर वो नहीं सही है तो किसी आगे को फॉरवर्ड मत कीजिए। दूसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपने पूछी, और वो मुझे बताना चाहिए कि कैसे ज्यादा व्हाट्सएप का, टीवी का यूज ज्यादा न करें। तो मैं ये कहूंगा कि आपके दिन का प्लानिंग ऐसे करें कि जिससे आप आपका दिन ज्यादातर प्रवृत्ति में जाए, और जिससे आपके पास व्हाट्सएप या न्यूज या टीवी देखने का टाइम थोड़ा। 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक, कि अगर कोई व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम कर रहा है
तो उसका जो वर्क फ्रॉम होम का टाइम है वो अलग है, बाकी का समय जो है वो अपने अलग अलग चीजों में डिवाइड कर सकता है। कोई व्यक्ति है कि जो बिल्कुल काम नहीं करता है, लॉकडाउन की वजह से उनका बिजनेस बंद हो गया है, लॉकडाउन की उसमें ये कर सकते हैं कि दिन में क्या क्या हमें एक्टिविटीज करनी है वो हम डिवाइड करें। मैं ज्यादातर अपने पेशेंट्स जो मुझे पूछते हैं कि ये जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से मुझे मेंटल हेल्थ मेरी जो है, जो मुझे टेंशन हो रहा है, मुझे चिंताएं हो रही है, उसके लिए मैं क्या करूं, तो मैं उनको आपसे शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा लंबा मैं बोलूंगा लेकिन वो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैं 6-7 पॉइंट्स आपको बताता हूँ। वो पॉइंट्स आप सुबह से शाम तक आप कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कल से आप वो सब कुछ शुरू कर दीजिए, लेकिन एक वस्तु शुरू कीजिए, उसके बाद उसमें महारत हासिल होने के बाद दूसरी वस्तु शुरू कीजिए। धीरे धीरे ये सब पॉइंट्स आप अगर कवर करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप आपका टीवी का या सोशल मीडिया का यूज थोड़ा कम करना शुरू करें। सबसे पहली चीज उसके लिए मैं ये बताऊंगा कि आप जब सुबह में उठते हैं तो सबसे पहला सुबह का टाइम आपका मी टाइम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सुबह में उठते हैं, हम सीधा मोबाइल हाथ में लेते हैं, मोबाइल पे खबरें देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, या सुबह में उठते हैं न्यूज़पेपर देखते हैं, सुबह में उठते हैं या सीधा टीवी चालू करते हैं, टीवी में न्यूज देखते हैं। उसकी बजाय सुबह में उठने के बाद अगर आप धार्मिक है तो 5 मिनट तक सुबह में भगवान का नाम लीजिए, या अगर आप धर्म में नहीं मानते हैं तो आप बैठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर सुबह में उठ के आपका जो पसंदीदा काम है वो शुरू कीजिए, कि जिससे आप नक्की करें कि आपका दिन का मूड कैसा होना चाहिए। आप नक्की करें कि आपका दिन आप कैसा गुजारना चाहते हैं, नहीं कि आपका व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर या टीवी। क्योंकि उसमें चीजें अच्छी भी आ सकती है, उसमें चीजें बुरी भी आ सकती है, उसमें चीजें काफी हद तक चिंता वाली भी आ सकती है, उसमें काफी चीजें उत्साहजनक भी आ सकती है। तो वो आप दिन में बाकी टाइम में कर सकते हैं, लेकिन जब सुबह में उठे तब आपका थोड़ा समय मी टाइम होना चाहिए, और जो मी टाइम है वो आपका दिन का मूड सेट करता है। उसके बाद मैं कहूंगा कि आप बिस्तर से निकलने के बाद, क्योंकि अभी हमें कहीं जाना नहीं होता है, हम कहते हैं कि अभी कहीं जाना नहीं है तो मैं ब्रश बाद में करूंगा, शावर में शाम को लूंगा, मैं कपड़े चेंज नहीं करता हूँ। उसकी जगह आपका रूटीन आप फॉलो कीजिए। सुबह में उठने के बाद ब्रश कीजिए, शावर लीजिए, ड्रेस कीजिए, और वो सब करने से ये होता है कि आप थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, ताजा फील करते हैं। उसके साथ अगर आप किसी व्यक्ति से, क्योंकि हम इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, हम हिंदुस्तानी ज्यादा तौर पे हम लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, तो आप अगर किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं फोन पे, वीडियो कॉल पे, फेस चैट पे आप अगर बात कर सकते हैं तो उनसे उनके सहूलियत के टाइम पे बात कीजिए। फिजिकली नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हम कम्युनिकेशन के जरिए, वीडियो चैट के जरिए उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कि जिससे हम लोगों के कांटेक्ट में रहे। हमारे इमोशंस जो हम अंदर बिल्टअप हुए हैं, जो चिंताएं अंदर बिल्टअप हुई है, वो शेयर करने से कम होती है, टेंशन हमारे कम होते हैं। उसके साथ मैं ये कहूंगा कि आप आपके न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। न्यूट्रिशन आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बहुत रिफाइंड शुगर नहीं होनी चाहिए। आप न्यूट्रिशन में जो लेते हैं उसमें प्रोसेस्ड फूड, और क्योंकि हम फ्री बैठे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं फ्री बैठा हूँ, थोड़ा मंचिंग करूँ, फ्री बैठा हूँ, थोड़ा नाश्ता लेके बैठूं। उसकी जगह जो हमारा डेली पहले रूटीन था, जो पहले डाइट था, उसको फॉलो करें, डाइट के टाइम को फॉलो करें, और जैसे कि हम नॉर्मल रूटीन में जी रहे हैं उस तरह जीने का प्रयत्न करें। उसके बहुत साथ दूसरी, हाँ, नहीं, आप बताएं, आप पूरा करें प्लीज अपनी बात। उसके साथ दूसरी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज दिन के लिए बहुत जरूरी है।
मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि एक्सरसाइज सुबह में ही करनी चाहिए। आपको जब अनुकूल आए एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये लॉकडाउन की वजह से हम हमारे जिम नहीं जा सकते, नीचे गार्डन में घूमने नहीं जा सकते, वॉक करने नहीं जा सकते, तो वही एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं। कई बार यूट्यूब पर देख के एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको जो अच्छी लगे वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कई योग क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चले हुए हैं, उसको देख के आप एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज सबसे बड़ा स्ट्रेस बूस्टर है। उससे आपका स्ट्रेस कम होता है, जो इमोशंस बिल्टअप हुए हैं वो कम होते हैं और उसकी वजह से आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। एक और चीज मैं और कहना चाहूंगा कि We are not getting your voice, Tarak bhai. हेलो। हाँ, હવે આવે છે. हाँ, इन सब के साथ मैं ये कहूंगा कि आपका नींद का टाइम आपको पर्टिकुलर रखना चाहिए। आपकी, क्योंकि हमें दूसरे दिन सुबह में उठने की चिंता नहीं होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम दिन में आवाज नहीं दूसरे आ दिन रही. लेट उठते हैं, उसकी जगह आपका जो डेली रूटीन का स्लीप टाइम था वो स्लीप टाइम रखिए। आप जितने बजे पहले सोते थे उतने बजे लगभग सोने का प्रयत्न कीजिए, दूसरे दिन उतने बजे उठने का प्रयत्न कीजिए, तो आपका रूटीन सेटअप होगा। और आप ये सब करेंगे, उसके साथ आप घर पे ही है, आपके साथ अगर आपके बच्चे हैं उनके साथ टाइम बिताइए, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं तो वो भी बोर हो रहे हैं, घर में ही है, बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं। वो अगर ज्यादा छोटे बच्चे हैं वो आपका टाइम और लव उनको चाहिए। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको इंटरनेट पे पढ़ाई चल रही है, तो वो जब फ्री होते हैं, बोर हुए होते हैं, उनके साथ टाइम बिताइए, उनको एंटरटेन कीजिए। ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास काफी कम ऐसा टाइम होगा कि जिससे आप पूरा दिन जो व्हाट्सएप या पूरा दिन जो टीवी पे निकालते हैं वो कम कर सके। बहुत लास्ट बात मैं करना चाहूंगा कि टाइम विथ नेचर, यानी कुदरत के साथ समय बहुत जरूरी है। तो दिन में एटलीस्ट आधा घंटा ऐसा निकालिए कि जिसमें आप नेचर के साथ है। अगर आपका बंगलो है उसमें बाहर बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा। अगर नहीं जा सकते हैं, आपकी विंडो खोलिए, आप बालकनी में बैठिए, पोर्च में बैठिए, नेचर के साथ थोड़ा समय डालिए। अगर क्वारंटाइन हुए हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मोबाइल पे नेचर की फिल्म देखे। हमारा दिमाग ऐसा होता है कि बाकी सब चीजें वो ग्रास्प कर लेता है, बाकी सब चीजें वो इमेजिन कर लेता है, और हम नेचर के साथ जितना समय गुजारते हैं उतना हम रिलैक्स करते हैं। तो मेरा मेरा जवाब ये है कि अगर आप डेली रूटीन इस प्रकार से विभाजित करेंगे तो ऐसा होगा कि आप टीवी टाइम है, आपका जो मोबाइल टाइम है कि जिसमें गलत इंफॉर्मेशन आती है और आप उससे डर जाते हैं, वो थोड़ा कम। बहुत अच्छी बात बोली तारक भाई. आज के डेट में मुझे भी पता है कि मेरे दर्शक मित्रों को काफी लोग ऐसे होंगे जिनको कोरोना हो, सिर्फ कहानियां सुनी है, कोरोना को फेस नहीं किया है. और मैं जानता हूं कि जिन्होंने कोरोना को फेस किया है वो बहुत पॉजिटिव हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आराम से ठीक होके निकलते हैं. हम डरे नहीं और हम वही रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करें जो पहले करते थे. उसी हाँ, टाइम सोए, उसी टाइम जगे और जितना हो सके घर में रहते हुए रूटीन को फॉलो करें. अगर हम 8 घंटे बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो उस 8 घंटे का शेड्यूल हमें फिक्स करना है, क्योंकि हम बाहर से काम नहीं कर रहे हैं. अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो करें, बाकी चीजें को फिक्स करें, अपने शेड्यूल को जाने समझे करें. टीवी देखें, मन पसंदीदा कार्यक्रम देखें, लेकिन आप न्यूज और व्हाट्सएप के जो न्यूज आते हैं उससे प्रभावित ना हो, क्योंकि आप मान के चलिए कि 90 से 95% या उससे भी ज्यादा चीजें बहुत सही जानकारी वाली नहीं होती हैं. अब नोएडा में क्या हो रहा है इससे आपको क्या लेना देना है. अहमदाबाद में एकाएक आया कि अहमदाबाद में रेड जोन, 500 कोरोना के मरीज, आग लगी पड़ी है. अरे मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ, मेरे कम से कम 50 रिलेटिव के फोन आ गए कि यार तुम्हारे अहमदाबाद में क्या हो गया. मैं बोला नहीं भैया कुछ नहीं हुआ है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, सारी चीजें एकदम ठीक है, कंट्रोल में है. और उस वक्त हमने सरकार को सलाह ये दी थी जिसको वो सरकार ने माना है, अगर आप देखेंगे तो
कि आप 500 मरीज मत बोला करिए, आप ऐसे बोलिए कि 500 मरीज मिले जिसके अंदर 490 ऐसे थे जिनको कोई सिम्टम नहीं, सिर्फ 10 पेशेंट ही ऐसे थे जिनको सिम्टम है, जिनको एडमिट करने की जरूरत है। वो 500 का आंकड़ा देख के सब डर जाते क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे हैं, उससे निकल रहा है। तो एक ये इशू था जिसको बहुत बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्टर तारक ने किया। इनफैक्ट 5-7 क्वेश्चन के तो मेरे आंसर उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही दे दिए। और मेरे को लगता है दर्शक मित्रों को, और जितने भी वायरल वीडियो हैं जो आप मिलोनी ने पूछा है या और किसी ने भी मुझसे पूछा है, आप उनके ऊपर ना जाएं, वायरल वीडियो के ऊपर बिल्कुल ना जाएं। ये चीजें वायरल होती रहेंगी, लोगों को बैठे बैठे कोई और काम है नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर, जो मन में आया जो आया मतलब फॉरवर्ड करते रहो, बस यही काम है। इसको ध्यान रखें। दूसरी चीज तारक भाई मुझसे पूछनी है कि आज इतना काम धंधा लेके बैठे हैं, सबका काम धंधा बंद है, रोटी शायद रोटी की दिक्कत किसी को नहीं होगी, काफी कम लोगों को होगी जो मेरे दर्शक मित्र हैं उसमें। जब रोटी की दिक्कत, जब कल काम धंधा खुलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस एक दिन में पिकअप हो जाएगा, बहुत सारी परेशानियां आने वाली है। तो हमारी मानसिक तैयारी उस चीज के लिए कैसे होनी चाहिए कि कल उठ के जब काम धंधा हम शुरू करें या शुरुआत करने की तैयारी हम आज से कैसे शुरू करें, क्या करें हम थोड़ा थोड़ा, कि जिस दिन लॉकडाउन खुले उस दिन हम अपना काम धंधा सुचारू रूप से चालू कर सकें। और ये फाइनेंशियल जो स्ट्रेस आने वाला है, जो काफी दिन तक काम बंद था और नया काम में पैसे का जो सर्कुलेशन है उसमें जो टाइम लगने वाला है, उन सब चीजों को हैंडल करना है। तो उसमें बहुत स्ट्रेस आता है। बहुत जगह मैंने सुना है शेयर बाजार गया एक लुढ़का तो फलाने ने सुसाइड कर लिया, फलाना बर्बाद हो गया, फलाने का बंगला बिक गया। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। अभी तो हम भय से पीड़ित हैं, घर में बंद हैं और सिर्फ कोरोना सोच रहा है। कल काम शुरू होगा तो काम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो हम इस चीज को, इस चैलेंज को फेस करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो ये इवेंट हुआ है कोरोना का, वो एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। यानी अभी तक जो जो लोग जी रहे हैं अभी इस दुनिया में, उन लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं है या फिर ऐसा कुछ उनको मेमोरी में नहीं है कि ऐसा कुछ पहले कुछ हुआ है। तो उसके लिए ये लॉकडाउन जब खुलेगा, काम जब शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा, ये अभी हम सिर्फ एज्यूम ही कर सकते हैं। और वो एजम्पशन पे मैं जो जवाब दे रहा हूँ वो ये है कि जिस चीज पे हम सब लोग फंसे हुए हैं, उस चीज में आप अकेले नहीं है, हम सब लोग एक साथ ही है। सब लोग को, काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जो 2-4 महीने उनका काम धंधा बंद रहा तो उनको खाने पीने की कोई दिक्कत, सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिनको खाने पीने की दिक्कत अभी से हो रही है, उनके लिए गवर्नमेंट उनका कुछ कर रही है। लेकिन जब काम धंधा खुलेगा तब ऐसा होगा कि काफी सारे लोग जो यहाँ पे काम करने के लिए गुजरात में आए थे, दूसरे राज्यों में गए थे, वो सब वापिस चले गए हैं। उनका वापिस आने का कोई टाइम निश्चित नहीं है। उसके साथ साथ काम धंधा जब शुरू होगा तब हम जब काम पे जाएंगे तो हमें डर रहेगा कि मैं जिस व्यक्ति से मिलता हूँ उस व्यक्ति को कोरोना है कि नहीं, उससे मैं कैसे अपना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखूं। और उसके साथ साथ कि अगर मुझे काम करना है ऐसी ऑफिस है कि जिसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये सब कुछ चीजें जान के अगर हम काम शुरू करेंगे तो हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आने वाली है वो हम सब लोगों को आने वाली है। तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा ऐसा प्रयत्न करें कि हम जो भी अभी खर्च कर रहे हैं वो हमारी जो डेली रूटीन की, जो डेली एसेंशियल चीजें हैं उस पर खर्च करें। जो चीजें जिसके बिना हम रह सकते हैं उसको अभी थोड़े समय के लिए हम ऐसा करें कि उसके बिना रहने का शुरू करें। क्योंकि काम धंधा जब हम शुरू करने वाले हैं उसके बाद भी 3 महीने 4 महीने किसी को अभी पता नहीं है। दूसरी चीज, हो सके उतनी अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स की मदद कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को मदद की जरूरत होती है, वो लोग कह नहीं पाते हैं और उसका स्ट्रेस इतना आता है कि वो लोग उसके स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे स्टेप उठा लेते हैं कि जिसकी वजह से वो और उनके फैमिली मुसीबत में आ जाते हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब काम धंधा शुरू हो तब
क्योंकि जब काम धंधा शुरू होगा, सब लोग काम पे जाएंगे। घर पे ऐसा होता है कि पहले जो हाउस होल्ड हेल्प था वो अब अवेलेबल नहीं है, तो उसके साथ साथ आप आवाज नहीं आ रही तारक भैया। सॉरी, जब आप ये भी ख्याल रखिए कि जब आप घर से काम पे जाने वाले हैं लॉकडाउन खुलने के बाद, तब घर का सारा काम सिर्फ एक व्यक्ति पे न आ जाए, उस काम का भी डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए कि जिससे उसका भी स्ट्रेस ना बढ़े, कि जिसकी वजह से वो भी स्ट्रेस मुक्त रहे, आप भी स्ट्रेस मुक्त रहे। और ये सब चीजें होने वाली है, इन सब चीजों को मान के चलिए, इन सब चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, और इतना साथ में समझ लीजिए कि इन सब चीजों में आप अकेले नहीं हैं, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड आपके साथ है। सब लोग इस चीजों में से गुजर रहे हैं, और अगर हम शांति से इस चीजों में से गुजर गए तो आगे अच्छा होने ही वाला है। इसमें एक वाक्य मुझे याद आया कि जो मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूं, वो है कि यू आर ब्रेवर देन यू नो एंड यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। मीन्स ये आप ख्याल रखिए कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो मान रहे हैं, उससे आप ज्यादा ब्रेव है, हिम्मतवान है, और आप जो सोच रहे हैं उससे ज्यादा आप ताकतवर है। इतना आपके मन में रखिए, तो भविष्य में ये जब लॉकडाउन खुलेगा, उसका जो इकोनॉमिकल ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस आने वाला है, उसको आप अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। वेरी गुड तारक भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया। और एक प्रश्न आपके इस उत्तर से मुझे ख्याल आता है कि एक समाज का तबका ऐसा है जो ऊपर बैठा है, एक समाज का तबका बीच में बैठा है, एक लोअर समाज का तबका है, और हर आदमी किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। अगर बहुत बड़े बिजनेसमैन है जैसे अंबानी है, तो उनको चलाने के लिए एक मैनेजर चाहिए, मैनेजर को चलाने के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर को चलाने के लिए हजारों लाखों वर्कर चाहिए। और अगर आप इस तरह की व्यवस्था देखेंगे तो समाज में हर जगह है। हमारे सोसाइटी को साफ करने वाले हैं, सड़क को साफ करने वाले सैनिटेशन वर्कर हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हैं, हमारे घर के गार्डनर्स हैं, हमारे घर का काम करने वाले नौकर हैं, दाई हैं। अभी ये प्रॉब्लम के कारण ये सब बंद हो चुका है, लेकिन अब इन 50 दिनों में ये चीजें बहुत अच्छे से ख्याल आ गई हैं कि कोरोना के साथ जीना है। और अगर किसी को सिम्टम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए सरकार ने आज से टेस्ट भी बंद कर दिए। मेरे पास आज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से आया है कि जिसको सिम्टम नहीं है उसके टेस्ट नहीं किए जाएंगे, कोई भी संजोग में नहीं किए जाएंगे। जो प्राइवेट लैब को उन्होंने दिए थे टेस्ट की सारी सहूलियतें वापस ले ली। तो आज ऐसा तो है नहीं कि ये टेस्ट अब पूरी जिंदगी चलते रहेंगे, हम टेस्ट करा करा के अपने वर्कर्स को अपने यहाँ वापस लेते रहेंगे। तो जिनको सिम्टम नहीं है, जिनको 15 दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके घर में खांसी सर्दी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वैसा कुछ डिक्लेरेशन लेके ये वर्कर काम पे लौटेंगे, वैसा कुछ डिक्लेरेशन लेके ये गार्डनर काम पे लौटेंगे। ये बेचारे गरीब लोग, एक तो वो, और दूसरा हम इनके साथ अपना एक्सेप्टेंस कैसे बढ़ाएं। हम एज अ समाज इनका एक्सेप्टेंस बढ़ा के, बात ये नहीं है कि वो आके हमारे यहाँ काम करेंगे और हमारी जिंदगी को आसान करेंगे, उनको भी रोजी रोटी चलानी है जो कल तक हमारे भरोसे चलती थी, आज एकाएक बंद हो गई। तो अगर उस रोजी रोटी का मैं ध्यान रखूं तो हमारा एक्सेप्टेंस इस तबके के प्रति कैसे लाना चाहिए हमें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक, मैं ये तीनों चीजों के बारे में एक के बाद एक कहूंगा। जैसे आपने बताया कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है। जो अपर क्लास है वो डिपेंडेंट है उनके नीचे रहने वाले लोगों पे। अगर उन लोगों को कुछ हुआ तो वो उनका अपर क्लास जो लोग हैं उनका काम बिगड़ जाएगा। अगर मिडिल क्लास है वो ऐसे है कि नहीं, वो किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं, ना किसी को कह सकते हैं कि मैं क्या तकलीफ में हूँ। और सबसे ज्यादा तकलीफ जैसे आपने बताया कि लोअर क्लास में है, कि जिसमें लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि जिनके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, राशन की लाइन में खड़े रहते हैं तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग करके खड़ा रहना पड़ता है, धूप में खड़ा रहना पड़ता है। किस प्रकार से वो खाना लाए, किस प्रकार से कल खाएंगे, वो उनको पता नहीं है, क्योंकि कोई काम मिलता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ है। तो अगर आपके वहां कोई काम करता था, आपके वहां पहले कोई काम करता, तो आप जिनको जानते हैं
उनको कांटेक्ट करने का प्रयत्न कीजिए, उनसे बात करने का प्रयत्न कीजिए, उनकी डिफिकल्टी जानने का प्रयत्न कीजिए और किस डिफिकल्टी में है उनको आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं वो कीजिए। ये करने के साथ साथ जो जो आपको प्रिकॉशन लेने हैं कि जिसमें आपको कोरोना न हो वो भी लीजिए, क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा कि लोगों को खाना देने जाने वाले लोगों को, खाना बांटने वाले लोगों को कोरोना हुआ और उनसे दूसरे लोगों को कोरोना फैलता है। तो प्रयत्न ये कीजिए कि आप लोगों की मदद कीजिए, लेकिन इस प्रकार से कीजिए कि जिससे आप भी सुरक्षित रहे और सामने वाला भी सुरक्षित रहे। और सामने से उन लोगों को फोन करके बात कीजिए, पूछिए, उनकी जरूरतें पूछिए, क्योंकि हम साथ साथ इन सब चीजों में फंसे हुए हैं। हम अगर निकलेंगे तो साथ साथ ही निकलेंगे, अगर साथ साथ नहीं होंगे तो हम में से कोई नहीं निकलने वाला है। बहुत तो ये बढ़िया, बात का ख्याल रखिए। बहुत बढ़िया। मतलब कहने का मतलब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये सब दर्शक मित्रों के लिए है कि मेरा सबसे पुराना स्टाफ है, मेरा ड्राइवर है, वो एक दिन मेरे पास आया कि सर मैं बोर हो गया हूँ, मैं काम पे आना चाहता हूँ। मैंने बोला कि हाँ बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं है, और तुम मोटे भी हो गए, लेकिन जरूरत क्या है काम पे आने की, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं। मैं हॉस्पिटल जरूर जाता हूँ पर सड़कें खाली हैं, 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ, 10 मिनट में वापस आ जाता हूँ, मुझे तरीके से जरूरत नहीं है। मालूम है उस ड्राइवर ने मुझे क्या जवाब दिया? आप लोग आश्चर्य करेंगे। वो एक ड्राइवर जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपना पूरा नाम अगर हिंदी या गुजराती में लिखेगा तो उसको 2 मिनट लगते हैं, बोला कि सर इसके साथ जीना तो सीखना ही पड़ेगा, ये डर तो मुझे निकालना ही पड़ेगा कि ये कोरोना हो सकता है। और उसने मुझे एक मैसेज दिया कि सर ये डर आप भी निकालो, आज मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, आप मेरा हाथ छोड़ दोगे, अरे आज नहीं तो कल तो पकड़ोगे, कब तक डरते रहोगे? पूरी जिंदगी डरते रहोगे कि आज से, ये कहीं टाइम लिमिट तो है नहीं कि 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद कोरोना चला जाएगा और तब आप बिल्कुल सेफ हैं और आप किसी के गले लग सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप अपनी सावधानियां बरतिए, जैसे डॉक्टर तारक ने बताया। वो आता है, मास्क पहनता है, हाथ धोता है, अपने गाड़ी के अंदर सैनिटाइजर रखा हुआ है, उस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता है, और पिछले 20 दिनों से वो मेरे साथ है। बस मैंने उसको एक हिदायत दे रखी है कि तुम्हारे सोसाइटी में अगर किसी को कोरोना होता है तो तुम भी घर से बाहर नहीं निकलना, तुम्हारे घर में किसी को खांसी होती है, फीवर होता है, या तुम्हें ऐसा कोई सिम्टम आता है तो मुझे इन्फॉर्म करना और नहीं आना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी का हाथ छोड़ देंगे। आज हम किसी का छोड़ेंगे, कोई और हमारा छोड़ देगा तो करेंगे क्या? ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत बड़े करोड़पति हैं, हम प्रधानमंत्री हैं इस देश के, जो होगा सब कुछ हो जाएगा। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे राजनेताओं के फोटो देखता हूँ टीवी पे, सबके बाल कटे हुए हैं। अभी मेरे को बाल काटना था तो मैंने मूंढ लिया अपने आप को, और कुछ कर ही नहीं सकता था। बाल काटने के लिए नहीं मिलता हमारे जैसे लोगों को। तो आप समझ रहे हो कि अगर आपने किसी का हाथ छोड़ा, अगर आपको किसी ने हाथ छोड़ दिया तो करोगे क्या? तो ये बहुत जरूरी है समझना। ये बहुत अच्छा मैसेज है जो डॉक्टर तारक ने दिया। तारक साहब, हमारे दर्शक मित्र में से कुछ क्वेश्चन है और जो मैं अभी पूछना चाहूंगा आपसे। बहुत सारे दर्शक मित्रों को तो लॉस ऑफ वेट या इम्यूनिटी बढ़ाने के जो क्वेश्चन है वो आपने रिस्पेक्टिव डाइटिशियन से या बाद में हमारे फेसबुक पेज पे आप पूछिए, क्योंकि उन सब चीजों को डिस्कस करने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। लेकिन इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि जब हम घर में रहते हैं, हमें आदत नहीं है, जैसे मुझे आदत नहीं, मैं एक वर्को अल्कोहलिक हूँ। जब सुबह घर से निकलता हूँ, रात को जाता हूँ, तो भी यही सोचता रहता हूँ कि आने वाले दिन, उसके अगले दिन क्या करूं, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता है। बहुत लोग होंगे, मैं तो फिर भी हॉस्पिटल आ जाता हूँ, बहुत लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते होंगे। तो स्ट्रेस, एंगर इश्यूज, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आज के डेट में हस्बैंड वाइफ में वैसे भी झगड़े होते हैं, लेकिन क्या वो झगड़े बढ़े हैं? तो काफी लोगों से मैंने सुना कि हाँ बढ़ गए हैं। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, इरिटेट हो जाना, अपने बच्चों को झिड़क देना, बिल्कुल खुश नहीं रहना। तो इस एंगर इश्यूज को, क्योंकि हम एक ही एनवायरनमेंट है, बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि जो सोसाइटी का दरबान है, अगर उसको सोसाइटी के चेयरमैन ने बोल दिया तो वो मेरा बॉस हो चुका है, वो पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका है, वो डंडा दिखाता है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम घर में बैठे बैठे स्ट्रेस आउट हो गए हैं, एंगर इश्यू आ गया है, उसको हम कैसे हैंडल करें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं उसके उसके भी दो तरह से जवाब दूंगा। पहली चीज ये है कि जो एंगर इश्यू हम बोर हो गए हैं उसकी वजह से आते हैं, तो उसके लिए आप दिन का प्लानिंग कीजिए। दिन के प्लानिंग के लिए मैंने जैसे पहले बताया उस प्रकार से प्लान कीजिए। उसके साथ साथ अगर हो सके तो कोई आपकी हॉबी डेवलप कीजिए कि जो आप कर सके।
और इस प्रकार से प्लान कीजिए कि जिससे आप में दिन में कम से कम टाइम आपका फ्री निकले, और ऐसा हो कि अगर आप आपके साथ आपके अपने साथ कुछ टाइम निकाल सके तो वो बहुत अच्छा है, कि जिससे आप दूसरे किसी से नहीं, घर में भी किसी से बात किए बगैर 10-15 मिनट आप आपके खुद के साथ निकालिए, कि जिससे आप सोच सके कि आपने आज क्या किया, कैसे किया, आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, और भविष्य में क्या कैसे गलत नहीं कर सकते। उसका दूसरा जवाब मैं ये दूंगा कि अभी जो एंगर इश्यू बढ़ा है, हर एक व्यक्ति को स्ट्रेस हुआ है, उस वजह से एंगर बढ़ता है। उसके साथ साथ में घर में जो जो चीजें हैं उसका उपयोग कौन कैसे कब करेगा उसके बारे में भी एंगर इश्यू होते हैं। जैसे टीवी है तो बच्चों को कुछ अलग देखना होता है, पेरेंट्स को कुछ अलग देखना होता है। मोबाइल है, लैपटॉप है, तो कौन कब किसका यूज करेगा वो नक्की नहीं होता है, उसकी वजह से एंगर इश्यू होता है। घर में अभी कोई काम करने नहीं आता है तो उसकी वजह से एंगर इश्यू होता है कि सब काम एक व्यक्ति पे आ जाता है, तो उसकी वजह से होता है। तो सबसे पहली चीज के गिव देम ग्रेस मीन्स उनपे थोड़ी कृपा कीजिए। आप जैसे आप फंसे हुए वो भी फंसे हुए, सब लोग फंसे हुए हैं, तो सब लोग स्ट्रेस में है, तो एक दूसरे को थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति आपके घर में आपसे नाराज है तो उससे बात करने का प्रयत्न कीजिए। जब बात करते हैं तब ये आप ध्यान रखिए कि आपका टोन बढ़े नहीं, वरना वो डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। आपका टोन नहीं बढ़ता है, सामने वाले का टोन बढ़ता है, तो आप उनको शांति से कहिए कि आप हम शांति से बात कर रहे हैं, आप शांति से बात करो। अगर फिर भी नहीं होता है तो थोड़ा विराम लीजिए, उसके बाद चर्चा कीजिए। हर एक व्यक्ति की नीड पहचानिए कि सामने वाले को क्या चाहिए, आप कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, वो सामने वाला कैसे एडजस्ट करता है, यानी एक स्टेप आप चलेंगे, एक स्टेप सामने वाला चलेगा, तो हम सब मिलजुल के सब कुछ कंट्रोल में ला सकेंगे। बच्चों की जो नीड है वो भी समझिए, उनको भी बरोबर रूप से समझ के उनका भी जो तकलीफ है उनका आप निराकरण लाइए, तो ये सब जो एंगर इश्यू है वो कंट्रोल में आएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं एक प्रश्न इसके ऊपर से पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली देखिए डॉक्टर तारक, खाना हमें बहुत अच्छा संतोष देता है। जब डिप्रेशन में होते हैं तो हम खाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो खाते हैं, और खाने के साथ सोशलाइजेशन एकदम आपस में जुड़ा रहा है। और अब हम बात करने लग गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। और अगर आप देखना चाहेंगे तो पूरा जो भारतीय समाज है वो सोशलाइजेशन पे डिपेंडेंट है, सोशलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। शादी हो, बच्चे की पैदाइश हो, बच्चे का सिलेक्शन हो, मृत्यु हो, चाहे कोई भी बात हो, हम उसमें सोशलाइज करना चाहेंगे और हम उसके अंदर खाने को भी एक तरीके से जोड़ते हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग आ चुका है, अब सोशलाइजेशन। तो क्या आपको लगता है कि ये पुराने दिन वापस आएंगे? और अगर इस पुराने दिन को वापस पाना है, अगर इस पुराने दिन को वापस पाना है, तो हमारे अपने विचारों में हम धीरे-धीरे कैसे चेंज लाएं? सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हाथ धोना है, मुंह पे मास्क लगाना है, इन 3 बातों को छोड़कर हम अपने विचारों में धीरे-धीरे कैसे क्या चेंजेस हमको लाने चाहिए कि कल उठ के हम समाज को एक्सेप्ट कर सकें, समाज हमें एक्सेप्ट कर सके, और उस सोशलाइजेशन का मजा हम भविष्य में जाके फिर से उठा सकें। आपने जो सवाल किया उससे मुझे एक चीज याद आई कि 2000 के साल में गुजरात में भूकंप आया था, अर्थक्वेक हुआ था, और वो अर्थक्वेक हुआ उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने तक उसके आफ्टर शॉक्स चले। शुरुआत में ऐसा होता था कि दिन में 5 बार 7 बार आफ्टर शॉक्स आते थे, धीरे धीरे वो कम होते होते वो आफ्टर शॉक्स दिन में 1 बार आने लगा, फिर 5-7 दिन में 1 बार आने लगा और धीरे धीरे चला गया। तो जब अर्थक्वेक हुआ था उस टाइम पे ऐसा होता था कि लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाने से डरते थे, लोग बेसमेंट में पार्किंग करने से डरते थे, लोग ऐसे घरों में से भी कई बार ऐसा इंस्टेंस होते थे कि वो लोग घर छोड़ के ऐसी जगह पे रहने गए थे कि जो मल्टी स्टोरी ना हो। लेकिन जैसे जैसे ये सब चीजें गई, धीरे धीरे लोग ग्रेजुअली अपनी जो पुरानी आदत थी वो सब वापस आने लगी। वो
वो जो हम कह सकते हैं कि समय था वो लगभग 3-4 महीने का था, तो वो लोगों को नॉर्मल होने में दूसरा 1-1.5 साल लगा। ये जो कोरोना के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये समय उससे काफी लंबा चलने वाला है। तो ये जो लंबा समय चलेगा, धीरे-धीरे इसके केसेस की संख्या घटेगी, धीरे-धीरे पूरे समाज में ज्यादातर लोगों को, जिसको अभी हम नया शब्द सीखे हर्ड इम्यूनिटी आएगी, तो उसके बाद धीरे-धीरे लोगों का एक-दूसरे से मिलना शुरू होगा। उस टाइम पे सिर्फ हमें अपने प्रिकॉशन रखने हैं, लेकिन उसके अलावा ये सब कुछ चीजें, जैसा लोग कहते हैं कि पहले जैसा कुछ नहीं होने वाला है, पहले जैसा कोई मैरिज फंक्शन नहीं होने वाला है, पहले जैसे लोग साथ में मिलके खाते थे, साथ में मिलके मूवीज देखने जाते थे, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ धीरे-धीरे वापस आने वाला है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। और उसके लिए हमें थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। अभी ये जो बीमारी है उसका पीक टाइम चल रहा है, ग्रेजुअली ये फेड होगी, धीरे-धीरे कम होगी, और उसके बाद लोगों के मन से उसका डर निकलेगा, और उसके बाद धीरे-धीरे लोग एक-दूसरे से मिलना शुरू करेंगे। वेरी गुड। देन यू आर टॉकिंग कि भाई मेंटल फियर से हम मेंटल फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अगर हम इसको इस तरह से बोलें तो हम एक मेंटल फियर में जो आज हैं वो मेंटल फ्रीडम पे जा रहे हैं। तो मेंटल फियर से एक बात, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन शायद होगा आपसे, या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, कि जो मुझे समझ में आता है कि मेंटल फियर से आजकल हम अपनी तकलीफ भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जिसको नी पेन है वो नहीं दिखा रहा, जिसको डायबिटीज है वो अपने डायबिटीज को चेक भी नहीं करते, दिखाने की तो बात जाने दीजिए। ब्लड प्रेशर है, मोटापा बढ़ रहा है, हर तरह की बीमारियां हैं जो घर घर बैठी हैं और पांव पसार रही हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, पर प्रैक्टिकली सबको करना चाहिए। पर अगर नहीं हो रहा है, और जो पुराने बीमार लोग हैं, या तो डॉक्टर पहले मिल नहीं रहे थे, अब डॉक्टर मिल रहे हैं तो लोग डॉक्टर के पास जाने से घबरा रहे हैं। तो अपनी बीमारी को हम ना रोके, ना बढ़ने दें मतलब, और अपने को छुपाएं नहीं, और हम घर से बाहर निकल के डॉक्टर के हॉस्पिटल तक जाएं, और इस प्रोसेस में हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, मतलब अपनी बीमारी का इलाज और अपनी बीमारी की ट्रीटमेंट लें, उस माइंडसेट में हम वापस आए, उस फियर से कैसे निकलें। अब इसके बारे में बस 2 मिनट अगर आप कुछ बता सकें। ठीक है। जो आपने कहा कि मेंटल फियर, तो मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि जो नॉर्मल फियर होता है, जिसको हम वरीज कहते हैं, कि जो एक्चुअली हमें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे कि मेरी एग्जाम है तो मैं टेंशन में आऊंगा, मैं टेंशन में आऊंगा तो मैं पढ़ पाऊंगा, और पढ़ूंगा तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूंगा। अगर टैक्स का दिन नजदीक आ रहा है, मुझे तैयार करना है, मुझे इनकम टैक्स भरना है, उसके 10-15 दिन पहले अगर मैंने तैयार नहीं किया है तो मुझे वरी होनी चाहिए, तो मैं बराबर रूप से वो कर पाऊंगा। लेकिन वो वरी वाली सिचुएशन न हो, और उसके बावजूद अगर मैं वरी करता हूं तो उसको एंजाइटी कहते हैं। उसको हमें हमारे डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट करनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपने फिजिकल इलनेस की बात की, कि जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को नी पेन है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, ये आज के समय में ऐसा कहा जा सकता है कि कोरोना से, कोविड-19 से लोग इतने डरे हुए हैं कि जैसे कि दुनिया में दूसरी कोई बीमारी है ही नहीं, और सब लोग कोविड के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि ये जो है बीमारी, उसका स्पाइक आया है, वो चला जाने वाला है, लेकिन जिस बीमारी से आप ग्रस्त है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो भविष्य में जाके आपको तकलीफ देने वाली है। तो आपकी मेडिसिन रेगुलर ले, आपके डॉक्टर के में रहे। अगर वो आपको तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर से मिलने जाए, आपके प्रिकॉशन रखिए, और इत्मीनान रखिए आपके डॉक्टर भी उनकी तरफ से प्रिकॉशन रख रहे हैं कि डॉक्टर को भी तकलीफ ना हो, उनके पेशेंट्स को भी तकलीफ ना हो, और उस प्रकार से प्रिकॉशन रख रहे हैं कि जिससे आपको कोरोना ना हो, लेकिन आपकी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। दूसरी चीज, आपकी रेगुलर दवाइयां चल रही है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, और आपका फॉलो अप का टाइम है, तो आप डॉक्टर से एक बार फोन पे कंसल्ट कीजिए कि ऐसा कुछ है तो मुझे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। उस चीजों में जो अभी इंडिया में नया कंसेप्ट आने लगा है टेलीमेडिसिन का, वो बहुत सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है, कि जिसमें व्यक्ति स्टेबल है, मेडिसिन पे स्टेबल है,
वो टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है और दवाइयाँ ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो ही वो पर्सनली डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से पूछ के उनके टाइम पे इस प्रकार से जाए, अपॉइंटमेंट लेके जाए कि जिससे 2 पेशेंट के अपॉइंटमेंट के बीच में टाइम हो कि दूसरे पेशेंट का इन्फेक्शन की उनको ना लगे। लेकिन डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वेरी गुड। तो अभी नट शेल में मैं बताऊं, ऐसे नो ओबेसिटी क्लिनिक में हम लोग ने तो क्लिनिक अटेंड कर रहे हैं, हमारे पेशेंट्स भी हमें आ रहे हैं। हम बस वो ध्यान रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, मास्क पहनिए आप भी, हम भी। हम देख रहे हैं, हम दर्दियों को ट्रीट कर रहे हैं। और बिलीव करिए, पिछले 51 दिनों में मैं हर दिन हॉस्पिटल आया हूँ, संडे को भी आया हूँ। मुझे मालूम है कि ये व्यवस्था ऐसी है अभी, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कब पता नहीं किसको कब डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। तो मैं अपने क्लिनिक में आ रहा था यही सोचकर, घंटों बैठा रहता हूँ, पेशेंट नहीं होते हैं फिर भी बहुत पॉजिटिव हूँ, ये सोचकर कि कभी भी किसी को जरूरत हो, अपनी पढ़ाई लिखाई करता हूँ, अपनी चीजें करता हूँ। तो मैं तारक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफी सारी चीजों पे जानकारी दी, काफी दर्शक मित्रों ने क्वेश्चन भी पूछे, जिसको मैंने किसी न किसी फॉर्म में डॉक्टर तारक से पूछ भी लिया है। तो कहने का मतलब है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल अगर सर। बिल्कुल आया तो ये वक्त भी गुजरेगा। अपने भय को निकालिए, 60 दिन हो गए हैं, जानकारी डॉक्टर के पास पूरी है, आपके पास भी ठीक ठाक अच्छी जानकारी है। अपने डॉक्टर से बात करें अगर कहीं भय लगता हो, और इस भय से अपने को मुक्त करें। अगर आप इस भय से अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे तो कल क्या करेंगे जब सच में भय मुक्त होने का समय आ जाएगा, जब सच में लगेगा कि अब सब कुछ खुल रहा है, काम करना है। बस में चढ़ने से डरेंगे, टैक्सी में चढ़ने से डरेंगे, बिजनेस करने से डरेंगे, सर्वेंट को लाने से डरेंगे, ड्राइवर को लाने से डरेंगे। आप करेंगे कैसे इस चीज को मैनेज? आप बिल्कुल नहीं घबराइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं खाली कि कोरोना स्वाइन फ्लू से कम डेंजरस है। अगर आप इंडिविजुअल वायरस को देखने जाएं, पर कोई वायरस जब इस बुरी तरीके से और इस तेजी के साथ कोई भी बीमारी फैलती है, याद करिए सूरत में जब प्लेग फैला था, तो प्लेग की दवा थी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन खाने से आदमी ठीक हो सकता था, लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन अवेलेबल भी थी मार्केट में। पर और तब भी लोग कितने लोग गुजर गए थे। जब भी कोई बीमारी इतने भयावह रूप में फैलती है, तो ये भयावह रूप में कुछ न कुछ लोगों की इसमें अकाल मृत्यु हो जाती है, बिकॉज वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते, अपने डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रख रहे होते, अपने मोटापे को कंट्रोल में नहीं रख रहे होते हैं, अपने सांस की बीमारी को कंट्रोल में नहीं रख रहे होते। ऐसे लोगों को तकलीफ ज्यादा होती है, हर इंसान को तकलीफ नहीं होती है। और आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए, जैसा डॉक्टर तारक ने समझाया, हमने अपने परिवार को ज्यादा वक्त दिया, हमने अपने शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, हम मेंटली ज्यादा हेल्दी होने की कोशिश करें। हम व्हाट्सएप से दूर रहें, हम टीवी से दूर रहें, हम जिंदगी को उसी तरीके से जीने की कोशिश करें जैसे कल करते थे। अगर आप से 8 से 10 12 घंटे घर से दूर रहते हैं, इससे ज्यादा तो कोई दूर नहीं रहता, तो उस 8 से 10 से 12 घंटे की अपनी एक्टिविटी को आप प्लान करें। आप ज्यादा ना सोएं, जंक ना खाएं, और आपको अगर कोई भी बीमारी होती है तो आपने डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल ना हिचकें। मान लीजिए आपको टेलीमेडिसिन, हमारे यहाँ क्या सोशल है, मिलते हैं डॉक्टर से ना तो बोलते हैं कि आपकी बातें सुन के ही डॉक्टर साहब आ जाए तो दर्द दूर हो जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर से बातें सुन के ही दर्द दूर होता है तो फोन कर लें। और अगर उसके बाद भी आपको जरूरत लगती है तो आप जरूर आए। हर हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के अब नियम फिक्स हैं, अपॉइंटमेंट लेके आए, हाथ को दूर रखें सब चीजों से, मास्क पहने, सैनिटाइज करने के लिए हाथ में सैनिटाइजर मिलते ही हैं। और अपने अपनी सेहत का, अपनी मानसिक सेहत का, अपने परिवार की सेहत का, अपने परिवार की खुशियों का बहुत बहुत ध्यान रखें। लॉकडाउन अब 17 तारीख के बाद धीरे धीरे खुलने वाला है। प्रधानमंत्री ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है कि वो लॉकडाउन को कैसा खोलना चाहते हैं। 2-3 राज्य छोड़ के इसलिए भी लॉकडाउन खोलना चाहते हैं कि अगर अब लॉकडाउन नहीं खोला, तो मैंने अभी हाल में नारायण मूर्ति को सुना था बैंगलोर में, जो इन्फोसिस के मालिक हैं, उनको सुना मैंने, मिस्टर राजन को सुना जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, मेरा अमर्त्य सेन को सुना कि आप लॉकडाउन में कोरोना से मृत्यु की बात ही भूल जाइए। फिर आपको सड़क के किनारे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे रोज जो भूख से मर गए होंगे, क्योंकि हम डरे हुए हैं। हमने काम एक्सटेंड नहीं किया, हमने काम एक्सटेंड नहीं किया तो वो रुपया सर्कुलेशन में नहीं आया, वो उस आदमी ने कमाया नहीं जिसको ये कमाई थी कल तक, भले ना दिन के 50 रुपए कमाता,
भले ना आपका नौकर आपसे 5,000 रुपए महीने के लेके जाता था या 2,000 रुपए के महीने के लेके जाता था, हम डरे हुए हैं और हम मिथ्या डरे हुए हैं। किसी भी इंसान को जिसको कोरोना नहीं है, अगर हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसके साथ फिर से वैसे ही काम करना चाहें, तो आज नहीं तो कल काम तो करना ही है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, तो ये मृत्यु आपको भूख से ज्यादा दिखाई देगी, बशर्ते आपको कोरोना से। इसीलिए भयभीत ना हो, बिल्कुल ना डरें। जब भी आपको सही जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि व्हाट्सएप की किसी जानकारी ने या टीवी की आपकी किसी जानकारी ने आपको बहुत व्यथित या विचलित कर दिया है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। आप इस तरह के चैट पे चले जाएं, डॉक्टर तारक का नंबर है, शेयर कर सकते हैं, या किसी भी साइकियाट्रिस्ट का शेयर कर सकते हैं। आप जाके उसके ऊपर उनसे मैसेज करके बात करें। अगर आपको लगता है कि बहुत डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो आप ऑनलाइन पे जाके बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जहाँ पे एक व्यवस्थित डिग्री वाले डॉक्टर ही आपको जवाब देंगे। नीम हकीम खतराए जान, आधा नॉलेज आपकी जान लेके जाएगा। और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। आप ये ना समझें कि मुझे डायबिटीज चेक करनी ही नहीं है, करूंगा ज्यादा आएगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो भगवान जाने मुझे कोरोना हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। जिसको जिस चीज की जरूरत है, उसको उस चीज की जरूरत के हिसाब से, मतलब इम्पोर्टेंस कितनी है वो देनी है आपको। अगर वो जरूरत इतनी इम्पोर्टेंट है तो उसको पूरा करें। आज आपके बच्चे को, मान लीजिए कोरोना का माहौल चल रहा है और रात के 10 बजे आपके घर में दूध नहीं है और आपका 2 महीने का बच्चा है और आप अपना दूध नहीं पिला सकते, आपको दूध चाहिए, तो क्या उसका अरेंजमेंट आप नहीं करेंगे? क्या आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे उसको दूध की खोज में? क्या आप अपने बच्चों को भूखा मरने देंगे? तो इस भय से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अपने सेहत का ध्यान बहुत रखना जरूरी है। तो इन सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस। अभी किसी पार्टिसिपेंट ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको देख के बताता हूँ। वैकेशन ऑफ कोरोना इज ओवर, किसी ने मेरे को लिख के भेजा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ऐसा लगता है तो वैकेशन ऑफ कोरोना इज मेरी वेरी मच। तारक भाई, आपके लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है मॉरल सपोर्ट के लिए कि आपने इतना अच्छा बोला, और थैंक यू। मुझे भी इस बात का बहुत एहसास है कि आपने बहुत अच्छा बोला। और मुझे अपने टीम के कुछ डॉक्टर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ये आइडिया दिया कि आपको इस तरह की एक वेबिनार अपने साइकेट्रिस्ट के साथ करनी चाहिए। और हमारे टीम में भी एक साइकोलॉजिस्ट है, अंकिता। अंकिता के व्यूज भी हैं, कभी कभी मुझे बहुत अचंभित कर जाते हैं, बहुत आश्चर्य करते हैं। और ये आश्चर्य जो है, ये दुखद नहीं होता, ये सुखद आश्चर्य होता है। क्यों? कि पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है ना, जो बाजार में पैसे खर्च करने से नहीं मिलती। पॉजिटिविटी और सही सोच एक ऐसी चीज है जो कहीं से पढ़ने पे भी नहीं मिलती। सही सोच एक सही इंसान के साथ बात करने में, सही सोच अपने अंदर पॉजिटिविटी वातावरण लाके आजू बाजू पॉजिटिविटी फैलाने में तभी मिलती है। इसके अलावा पॉजिटिविटी आपको कभी नहीं मिलेगी। ऐसा तो कैसे हो सकता है कि जो खाना मुझे पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप गलत इंसान हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मुझे ये समझना पड़ेगा कि मुझे पसंद है, आपको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसान गलत हो। हम दोनों की पसंद अलग है, लेकिन इस रिस्पेक्ट के साथ, इन सब चीजों के साथ, अपने हेल्थ को ध्यान रखते हुए, अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान रखते हुए, और हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। हम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम अब काम कर रही है। डॉक्टर तारक काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि वो रोज हॉस्पिटल जाते हैं, और इस तरह के सारे डॉक्टर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी सेवाओं को लेने में ना हिचके, और हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है, अपना ध्यान रखें, और जब भी हमारी जरूरत हो बेहिचक हमें अप्रोच करें। हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू तारक भाई, और तारक भाई का बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।